انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چھوٹا ٹوانا 20 محرم چک نمبر 50 ٹوانا سالانہ مجلس اعزاء و جلوس سے برپا ہو رہا ہے۔ 20 محرم ہر سال ہوتا ہے 2026 20 محرم مجلس اعزاء جلوس اور مجلس اعزاء۔ جزاک اللہ خیر۔ اسدار حسین کی منت مرادوں والی بیٹی اپنے بابا کے پاس آ جاتی ہے، آ کر کہتی ہے بابا وہ فوجوں کا راہ زیادہ ہے، مجھے میرا چاچا عباس نظر نہیں آتا، مجھے میرا چاچا عباس نظر نہیں آتا، بابا مجھے اٹھا تو صحیح میں اپنے چاچا عباس کو دیکھوں۔ اسدار حسین نے اپنی منت مرادوں والی بیٹی کو اٹھا کر سینے سے لگایا، تڑپ کر کہتی ہے بابا مجھے میرا چاچا نظر نہیں آتا، بابا مجھے اتنا بتا کہیں میرا ویر پیاسا تو نہیں مر جائے گا، میرا چاچا پانی لے آئے گا۔ اسدار حسین نے تڑپ کر کہا سکینہ مجھے تو ایسے لگتا ہے بچنا تیرا بھائی بھی نہیں ہے، بچنا میرا بھی نہیں ہے۔ انہا عظمته وتجبرا بالعظمت والکبریاء وتعطفا بالعز والبر والجلال وتمجدا بالفخر والبهاء وتحللا بالمجد والاقلال والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابته التهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام صلوات۔ جو مومنین بیمار ہیں مالک الملک شفا عطا فرمائے، جو مومنین بے اولاد ہیں مالک اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں مالک روزگار عطا فرمائے، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں مالک اپنے گھر عطا فرمائے، جو پریشان ہیں مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس قوم میں عزاداری کا سلسلہ شروع کرنے والے جو بزرگان اس دنیا سے گئے ہیں تمام کے اور بالخصوص حاضرین مجلس کے میرے اور عاشق حسین شاہ صاحب کے والدین اور باری اللہ ایسے مومنین مرحومین مومنین و مومنات جن کا احسال ثواب کرنے والا کوئی نہ ہو ان کی مغفرت فرما۔ باری اللہ عزت اہل بیت کا واسطہ ہمارے مرحومین کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، میرے ملک میں امن کا بول بالا فرما، ملت تشیع کو اتحاد نصیب فرما، ہمیں سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے اوان و انصار میں شریک فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مولا کی جلد آمد کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات دیں گے جو آپ کی مرضی ہے۔ حبیب ہم قبلہ اسے بنائیں گے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم قبلے کو ادھر پھیر دیں گے یا حبیب جدھر آپ کی مرضی ہے، ہماری مرضی نہیں چلے گی، اب آپ کی مرضی چلے گی، جدھر آپ کی مرضی ہوگی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم قبلہ ادھر پھیریں گے جدھر آپ کی مرضی ہے۔ فرمایا یہ نہیں کہ 10 دن بعد ہفتے بعد اگلی نماز میں نہیں، فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی اپنے چہرے کو مسجد حرم کی طرف پھیر لیں۔ ابھی اسی وقت قیام میں کھڑے تھے جب ذہن میں یہ خیال آیا، جب تک جبریل آیت لے کے آیا حضور رکوع میں پہنچ چکے، ادھر رسول نے چہرہ پھیرا، ادھر میرے مولا علی نے چہرہ پھیر لیا، نماز مکمل ہوئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا قبلہ بدل گیا ہے، آج کے بعد بیت المقدس قبلہ نہیں، آج کے بعد کعبہ قبلہ ہے۔ اگلی یعنی نماز عصر کی نماز پھر صحابہ اکرام نے کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھی، لیکن مولا علی علیہ السلام جیسے حضور نے چہرہ پھیرا تھا یوں ہی میرے مولا علی نے چہرہ پھیرا تھا۔ یہی وجہ ہے
मस्जिद कूफा में मिंबर पर बैठ के फख्र करते हुए अली ने फरमाया, नहनु नुसल्ली मअन नबिय्य इलल क़िबलतैन, मैं वो हूँ जिसे नबी के साथ मिलके एक नमाज दो क़िबलों की तरफ मुंह करके पढ़ी है। क़िबला एक, नमाज एक थी, क़िबले दो रखते हुजूर ने जिधर मुंह करके पढ़ी उधर ही मौला अली ने मुंह करके पढ़ी। यानी जैसे सीरत रसूल पे अली ने अमल किया है कोई नहीं कर सका। क्यों किया है अली ने ये वजह बताता हूँ। आपने देखा होगा बचपन में, मैंने देखा है, मैंने ये किया भी है, आपने भी किया होगा। नौजवानों जरा मेरा साथ देना। हम घर जाए ना, जाके जूता उतारे तो बच्चे जूता पहन के चल पड़ते। देखा नहीं आपने ऐसा? मैंने देखा है और मैंने बचपन में ऐसा किया भी है। बड़ा आके जूता उतारे, बच्चा वही जूता पहन के चल पड़ता है। और जब मेरा बचपन था टीवी पे एक ऐड चला करता था, एक आदमी आता है सिगरेट पीता है, वो जो बच जाता है वो टुकड़ा फेंक देता है, एक बच्चा आता है उसे उठा के पीने लग जाता है। साथ फिर आवाज आती थी, एहतियात किया करो बच्चे बड़ों से असर लेते हैं। याद होगा यकीनन आपको, एहतियात किया करो बच्चे बड़ों से असर लेते हैं। इसका मतलब है अगर हर किसी के बच्चे बड़ों से असर लेते हैं, आखिर अली ने भी तो अपने बड़ों से असर लिया है ना। ये जो अली ने फौरन चेहरा फेरा है, ये अली को अली के बाबा ने सिखाया है कि जो रसूल करे वो ही करना दीन है। एक जुमला अगर मेरा आप जाया ना करें, नमाज दीन नहीं, रोजा दीन नहीं, मुस्तफा की मर्जी का नाम दीन है। भेजा है वो चाहती हैं उनकी शादी मुस्तफा से कर दी जाए। हजरत अबू तालिब उठे, हुजूर के पास आए, हुजूर अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कब्र के पास बैठे थे। पास बैठ के हजरत अबू तालिब ने फरमाया, बेटे मोहम्मद खदीजा की कनीज आई है, खदीजा चाहती है आपकी शादी खदीजा से हो, आप क्या कहते हैं? फरमाया चचा जैसे आप राजी। हर नबी ने कहा या अल्लाह जैसे तू राजी, अल्लाह ने कहा मुस्तफा जैसे तू राजी, मुस्तफा ने कहा चचा जैसे तू राजी। ये मुस्तफा की मर्जी जिससे मिल जाए, मुस्तफा की मर्जी जिससे मिल जाए उसे अबू तालिब कहते हैं। काश दामने वक्त में वसअत होती तो मैं लंबी चौड़ी तकरीर करता। अभी एक जुमला कह के मैं मसाइब की तरफ जाऊंगा। अल्लाह की मर्जी मुस्तफा की मर्जी से मिलती है। सादात मेरी बात जाया ना कीजिएगा। अल्लाह की मर्जी मुस्तफा की मर्जी से मिलती है और मुस्तफा की मर्जी अली और अबू तालिब की मर्जी से मिलती है। इससे ज्यादा मुख्तसर वक्त में, इससे ज्यादा जामे बात मेरे पास में नहीं। वो मुझसे ज्यादा अच्छा खतीब होगा, वो इससे ज्यादा जामे बात कर सकता है। वक्त इंतहाई मुख्तसर था और इतना मुख्तसर था कि गोया समंदर को कूजे में बंद कर। मैं चूंकि कम पढ़ा लिखा हूं, मैं तो सादा सादा बातें कर सकता हूं। अबू तालिब ने और अबू तालिब के बेटों ने सारी जिंदगी इसी एक मुद्दे पे गुजारी कि हर लम्हा मुस्तफ़ा को राजी करने की कोशिश करी। यानी अबू तालिब की और अबू तालिब के बेटों की जो चाहत थी, जो मर्जी थी, या जो उनका मिशन था, वो यही था कि मुस्तफ़ा राजी हो जाए। और उन्होंने फिर मुस्तफ़ा को ऐसे राजी किया जैसे राजी करने का हक था। ये करबला में इमाम हुसैन और आलिया बीबी को मुस्तफ़ा का नवासा और मुस्तफ़ा की नवासी समझ के नहीं लूटा गया, अबू तालिब का पोता और अबू तालिब की पोती समझ के लूटा गया। अली की बेटियों को नबी की नवासियां समझ के नहीं मारा गया, अबू तालिब की पोतियां समझ के मारा गया। खुदा आपको ले जाए, मेरी दिल से दुआ है। ईरान की सरहद से लेके मदीने तक, शाम तक जितने मर्द दफन हैं सारे अबू तालिब के पोते हैं, जितनी बीबियां दफन हैं सारी अबू तालिब की पोतियां। लोगों के घरों से लगा कुछ नहीं और अबू तालिब के घर में बचा कुछ। चूंकि मुझे सुलझना बरामद करवानी है, तवील मसाइब भी मैं नहीं पढ़ूंगा। इस चश्मे फलक ने बड़े बड़े बहादुर देखे, मौला अली जैसे, जाफर तैयार जैसे, हजरत अब्बास जैसे,
लेकिन इस चश्मे फलक ने सिर्फ एक बहादुर देखा जो प्यासा था, जो तन्हा था, जिसका कोई नहीं रह गया था, जिसका बहता लहू साफ करने वाला कोई नहीं था, और जो जख्मी इतना था कि सामने से जो धूप पड़ती थी वो पुश्त से गुजर जाती। अल्लामा बाकिर मजलिसी नाम जानते हैं ना जनाब, हमारे मजहब के बहुत बड़े आलिम। बाकिर मजलिसी करबला गए, हरम के मुजावरों ने कहा क़िबला मजलिस सुनाइए। अल्लामा मजलिसी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पढ़ी। उन्होंने उसमें रिवायत पढ़ी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 1950 जख्म लगे, 1950 जख्म लगे। मजलिस पढ़ी, जाके जहाँ क़याम था सो गए। रात दरवाजे पे दस्तक हुई, गए दरवाजे के पास, कौन? फरमाया बाकिर दरवाजा खोल। दरवाजा खोला, सामने को काले बुरखे वाली बीबी खड़ी है। बीबी आप कौन हैं? फरमाया बाकिर तूने दिन को मजलिस पढ़ी है? जी बीबी पढ़ी। फरमाया तूने पढ़ा है कि मेरे हुसैन को 1950 जख्म लगे हैं? जी बीबी मैंने पढ़ा है। बीबी ने फरमाया मैं हुसैन की माँ हूं। तुझे किसने बताया कि मेरे हुसैन को 1950 जख्म लगे थे? बीबी मेरे उस्ताद ने। बीबी ने फरमाया तेरा उस्ताद करबला में था? बीबी नहीं। फरमाया तेरे उस्ताद को किसने बताया? बीबी मेरे दादा उस्ताद ने। बीबी ने फरमाया तेरा दादा उस्ताद करबला में था? बीबी नहीं। फरमाया मुझसे पूछ मैं करबला में मौजूद थी। मेरे हुसैन को कितने जख्म लगे थे? मुझसे पूछ मैं करबला में मौजूद थी। बीबी आपके हुसैन को कितने जख्म लगे थे? फरमाया इतना जख्मी था मेरा हुसैन कि अंगूठी रखने की जगह हुसैन के जिस्म पे मौजूद नहीं। फरमाया बाकिर मैंने चक्कियां पीस पीस के पाला था, बाकिर मैंने उसे आयतें पढ़ पढ़ के पाला था। एक रिवायत पढ़ूंगा और बस मैं जुलझना मंगवा लूंगा। अजीजों अकेला रह गया मेरा गरीब इमाम। शिमर करीब आया, मसाइब में मजमा नहीं चाहिए। शिमर करीब आया। देखिए जब जनाजा आना हो ना फिर इधर उधर नहीं देखते, ये जुलझना नहीं, ये गरीब का जनाजा आना है। शिमर ने करीब आके कहा हुसैन फौज तेरी नहीं रही, लड़ तू नहीं सकता, जख्मी तू बहुत है, पानी हमने तुझे नहीं देना, हुसैन आप बैत कर। उसके मुंह से लफ्ज़ बैत सुना, मेरे इमाम को जलाल आया। आप मेरे मिजाज से वाकिफ हैं, ये बहुत सारे चेहरे ऐसे बैठे जो मेरे मिजाज से सादात में बंद पड़ा नहीं करता, लेकिन कभी कभी जब मेरा अपना रोने का दिल हो ना मैं फिर कोई बंद शामिल कर लिया करता हूँ। जब उसके मुंह से लफ्ज़ बैत सुना ना, इमाम के चेहरे पे जलाल आया। इमाम ने कब्जा तलवार पे जोर दिया, जोर दे के फरमाया मत समझे फौज मरा बैठा है कुल दुनिया दा सुल्तान है, जे हुक्म कराते खुल्द विचों आवे छोड़ के कुल रिजवान है। फरमाया देवा अमर अब्बास को टुर आवे एक वारी विच मैदान है, कर खाक इराक दी लाल देवे आवे नजर न कोई इंसान है। फरमाया तूने समझा है कि मैं तुम्हारा पाबंद हूँ, जा तू जाके अपनी फौज संभाल। अकबर और अब्बास की मौत का मारा हुआ हमला करने लगा है। उसने जाके अपनी फौजें दुरुस्त करना शुरू की। इमाम मुर्तजज के पास आए, लजाम पकड़ी, मुर्तजज की तरफ देख के फरमाया मुझे एहसास है तू जख्मी है, मुझे एहसास है तू प्यासा है, मुझे पता है तू थका हुआ है, लेकिन चैलेंज मैंने कर लिया, मेरा साथ देगा? हैवान अपनी जुबान में कहते हैं अगर तेरा साथ नहीं देना तेरी माँ ज़हरा की चादर पे जौ क्यों खाए थे? मुझे नबी की बेटी ने अपनी चादर पे जौ खिला के कहा था मुर्तजज मेरे हुसैन को अकेला ना छोड़ना। आज तो वादा पूरा करने का वक्त है। मेरी जीन पे चढ़ के तलवार उठाना तेरा काम है, तेरी तलवार की नोक से अपने कदम मिलाना मेरा काम। जब तक मैं इशारा न करूं सुलझना ना लाइएगा, मैं कहूं फिर सुलझना लाइएगा। तेरी तलवार के नोक से अपने सोम मिलाना मेरा काम है। इमाम मुर्तजज पे बैठे, एड़ लगाई, नहीं चला। इमाम ने झुक के देखा, बेटी सोमों से लिपटी हुई थी। इमाम उतरे, मासूमा को गले से लगा के फरमाया सकीना मेरा इम्तिहान खत्म हो गया, सकीना तेरा इम्तिहान शुरू हो गया। सकीना पुफियों को तंग ना करना कि यहाँ सोना है, यहाँ नहीं सोना, यहाँ सोना है, यहाँ नहीं सोना। फरमाया बाबा मैंने जिंदा वापस नहीं आना शाम से, बाबा जब तेरी बहनें आए ना उनसे पूछ लेना यजीद की बेटी तकिए पे सर रख के सोई होगी, तेरी सकीना जिंदान में पत्थरों पे सर रख के सोएगी। बाबा मैंने नहीं आना, अपनी बहनों से पूछ लेना। बाबा एक मसला मुझे भी बताता जा। सकीना पूछ। फरमाया बाबा यतीम किसे कहते हैं?
फरमाया सकीना जिसे तमाचे मारे जाएं छुड़ाने वाला कोई न रह जाए उसे यतीम कहते हैं, जिसके कुर्ते को आग लग जाए बुझाने वाला कोई न रह जाए उसे यतीम कहते हैं, जिसके कानों से बालियां बिन खोले छीन ली जाए सकीना उसे यतीम कहते हैं। इमाम मुर्तजज पर सवार हुए, इमाम ने हमला किया, फौजें आगे लग के दौड़ी। अल्लाह आपको दिखाए करबला से 12 मील यानी 18 किलोमीटर बनते हैं दूर है मंजिल नुखैला। यहाँ पे खजूरों का एक बाग था इसलिए इसे मंजिल नुखैला कहते हैं। यहाँ तक इमाम फौजों के पीछे आए, फौजें आके लग के दौड़ी। यहाँ खड़े होकर मेरे इमाम ने अलम जमीन में नस्ब किया, फरमाया खड़े होकर लड़ो तुमने मेरा अकबर मारा है। अगर सैयद इस जुमले के दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। फरमाया खड़े होके लड़ो तुमने मेरा अकबर मारा है, और खड़े होके लड़ो तुमने मेरा गाजी मारा है, खड़े होके लड़ो तुमने मेरे असगर को तीर मारा है, खड़े होके लड़ो तुमने मेरे कासिम के टुकड़े कर दिए हैं, खड़े होके लड़ो तुमने मेरी बहन की नस्ल खत्म कर दी है। यहाँ इमाम खड़े हुए थे, किसी ने पोस्ट पे हाथ रखा, इमाम ने इरादा किया पीछे मुड़ के देखूं, आवाज आई हुसैन मुड़ के न देखना तेरा कोई जख्म न दुख जाए। इमाम ने फरमाया कौन है जिसे यहाँ मेरे जख्मों का एहसास है, कौन है जिसे ये एहसास है मेरा जख्म न दुख जाए। सैयद और पर्दे में जो सैयदजादियां बैठी हैं दिल दुखे तो माफ करना। इमाम ने फरमाया ना कौन है जिसे मेरे जख्मों का एहसास है। आहिस्ता आहिस्ता आवाज आई हुसैन में तेरी उजड़ी माँ, हुसैन में तेरी जख्मी माँ, हुसैन तेरे दर्दों ने मुझे कब्र में चैन नहीं लेने दिया, हुसैन में तो 7 मुहर्रम की करबला में आई हुई हूँ। अल्लाह करे जी माँ किसी की ना मरे, लेकिन जिसकी माँ मर गई हो ना उसे मेरी बात की समझ आएगी। बंदे को माँ की कब्र नजर आए ना शाह जी, बंदे को हर दुख याद आ जाता है। ऐसे ही है ना, माँ की कब्र देख के बंदे को हर दुख याद आता है। सैयद को पता चला ना करबला में मेरी माँ आ गई है, मेरा मौला छलांग लगा के मुर्तजज की जीन से उतरा, माँ की गर्दन में बालू डाल के फरमाया माँ मेरा अकबर मारा गया, माँ मेरा असगर मारा गया, माँ मेरा गाजी मारा गया, माँ मेरे आनो मोहम्मद मारे गए, माँ मेरा कासिम मारा गया, अम्मा मैं अकेला रह गया, अम्मा मेरी बहनें उजड़ गई, अम्मा मेरी बेटियां रुल गई, अम्मा अब पूछ नाने से दीन बच गया। बीबी ने फरमाया हुसैन वापस आ, वादा पूरा करने का वक्त है। इमाम वापस पलटे, मसाइब जो मुझे पढ़ना था वो पढ़ चुका। अब एक जुमला अहले सुन्नत दोस्तों के लिए। इमाम इसी हमले से वापस पलटे। इमाम ज़माना फरमाते हैं एक जालिम ने नेज़ा मारा जो इमाम के बाएं पहलू में लगा। इमाम भागते हुए घोड़े से दाएं रुखसार के जमीन पे आए। कोई अहले सुन्नत दोस्त हो उसके वो खुसूसी तवज्जो करे, अगर कोई अहले सुन्नत दोस्त ना हो तो सादात आपको इज्जत ज़हरा की कसम बोल के जवाब दीजिएगा। जानवर हो, जख्मी हो, थका हुआ हो, प्यासा हो, उसकी जीन से सवार गिर जाए वो रुकेगा? नहीं रुकता ना, दौड़ेगा, जाके छाया ढूंढूं, चारा ढूंढूं, पानी ढूंढूं, ठंडी जगह ढूंढूं, आराम करूं। मुर्तजज़ तेरे कदमों पे हमारी जाने निसार। इमाम जीन से गिरे गया नहीं, 17वें कदम से वापस आके कदमों में पे मुंह रख के कहता अगर मेरी गलती से गिरे हैं तो मैं माफी मांगता हूँ। इमाम ने फरमाया तो तेरी गलती नहीं, मौला आप अपनी मर्जी से उतरे। फरमाया ना तेरी गलती ना मेरी मर्जी, नाने की उम्मत की मर्जी। वक्त होता तवील मसाए पड़ता, बस यही गुफ्तगू रोक रहा हूँ। इमाम ने फरमाया मुर्तजज़ गर्दन झुका, मुर्तजज़ ने गर्दन झुकाई। इमाम फरमाते मैं तेरी ज़ीन पे चढ़ नहीं सकता, तू गर्दन झुका, मैं तेरे गर्दन में बाजू डालता हूँ, मुझे मेरे अकबर की लाश पे ले जा, मुझे वहां ले जा जहां मेरे अकबर की लाश पड़ी हुई है। अज़ादारों मुर्तजज़ ने कहा मौला मेरी ज़ीन पे चढ़, मैं तुझे मदीने ले जाता हूँ, मैं तेरे नाने से कहूंगा अल्लाह का नबी मैं तेरा बेटा बचा के ले आया हूँ, अल्लाह का नबी अपना बेटा संभाल ले। इमाम ने फरमाया मेरा नाना करबला में आया हुआ है। मुर्तजज़ ने कहा नजफ तेरे बाबा अली के पास ले जाता हूँ। इमाम ने फरमाया मेरा बाबा भी आया हुआ है। मुर्तजज़ ने कहा तेरी अम्मा के पास ले जाता, फरमाया मेरी माँ ज़हरा भी आई हुई है। मुर्तजज़ ने कहा हिम्मत करके मेरी ज़ीन पे चढ़, तुझे खेमों में ले जाऊं। इमाम ने फरमाया मेरे कत्ल के बाद ये सारे खेमों में चले जाएंगे। मुर्तजज़ ने कहा इस मुश्किल वक्त में छोड़ जाऊं, नबी की बेटी नाराज होगी। इमाम ने फरमाया मैं राजी, मेरी अम्मा राजी, मेरा नाना राजी, मेरी बहनें राजी, हम सारे तुझ पे राजी। मुर्तजज़ मैं तेरी ज़ीन पे चढ़ नहीं सकता। मुर्तजज़ जरा झुक। मुर्तजज़ झुका। इमाम ने अपनी तलवार से मुर्तजज़ की बागें काटी,
जब मैंने कहा था जुमला अहले सुन्नत दोस्तों के लिए, हमने सुलझना तैयार करना कहाँ से सीखा? इमाम ने अपने हाथ से मुर्तजज की जुल्फकार से मुर्तजज की बागें काटी, अपनी पेशानी से खून लेके मुर्तजज की पेशानी पे लगाया, अपना अमामा सर से उतार के मुर्तजज की जीन पे रखा, फरमाया खैमों में चला जा, अब तुझे बताना नहीं पड़ेगा, हम मेरी बहनों को देख के पता चल जाएगा मां जाया मारा गया है, तुझे मेरी बहनों को मेरी बेटियों को बताना नहीं पड़ेगा, जा मुर्तजज खेमों में जा। मुर्तजज ने कहा मौला इस मुश्किल वक्त में छोड़ के कैसे चला जाऊं, दिल नहीं मानता। इमाम ने फरमाया मुर्तजज तूने मुश्किल वक्त में वफा की है, दो वादे में हुसैन करता हूँ। मौला कौन से? फरमाया क़यामत तक शहादत मेरी पड़ी जाएगी, शबी तेरी बरामद होगी। फरमाया क़यामत तक मेरी नस्ल की वो सैयदजादियाँ जिनकी जूती कभी बाहर नहीं आई, वो हर साल 10 मुहर्रम को तेरी गर्दन में बाजू डाल के तुझसे पूछा करेंगी हमारा मौला कहाँ रह गया। वो तुझसे पूछा करेंगी मुर्तजज बता ज़हरा का बेटा कहाँ है। अज़ादारो सुलझना आ गया है, सुलझना की सीन खाली है, सुलझना से पूछो सुलझना तू तो हमारे मौला को लेके गया था, सुलझना हुसैन कहाँ रह गया, सुलझना तेरी जीन क्यों खाली। मातम हुसैन जख्मों से चूर चूर है ज़हरा का लाडला, जख्मों से चूर है बड़ा अरमान क्या जो है बड़ा अरमान देखो अपन पवाना सकी है बड़ा अरमान है बड़ा अरमान देखो अपन पवाना सकी है बड़ा अरमान ना सकी है वतन ते मंग मैली में सरते जेड़ा तारे छोड़ से दो विगे सजा नहीं उठा सके बनाया